Hello friends. I just wanted to talk some no-nos of this UPSC journey. मतलब what you shouldn't do while you are preparing for your examination. So आपको सब बताएंगे कि यार ये करना है वो करना है बट ये कोई कंसंट्रेटेड वे में नहीं बताएगा कि ये चीज़ें मत करो या इन चीज़ों को कम करो। ठीक है ना? तो आई जस्ट वांटेड टू पुट इट आउट देयर कि what are you should avoid while you are preparing for UPSC examination. So going first, by this image, what I mean is, यार, stay away from gadgets until unless it's absolutely necessary. ज़्यादा devices में मत खोइए. आईपैड हो गया या टैबलेट्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, लैपटॉप्स. Don't try to use them too much. If you have some classes, online sessions that you are taking, that is fine. But other than that, try to avoid it. Okay. So एक डेढ़ साल, see, you will need just 1.5 years of serious preparation to become that serious contender who can crack this UPSC examination. ठीक है? So try to, in this period, try to stay away from these devices. Okay. Going next, by this I mean social media platforms in general, Instagrams, YouTube, WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, in सबसे try to stay aloof. So at least these three, the first three images, Facebook, Twitter, and Instagram will might not serve that much purpose. So एक बारी आपने Instagram पे रील देखना स्टार्ट करा, then it never stops until either your mobile data is off or you someone ask you. मतलब it's very addictive. Okay, some of you might even know it. तो just try to stay away from. चाहे तो ऐप डिलीट करो यार, है ना? You have, if you are on a Telegram channel, follow it. See that channel. If it's useful, see that channel once or twice or thrice. That's enough. Not more than that. ये नहीं कि जैसे ही व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आया, यू आर जस्ट रिस्पॉन्डिंग देन एंड देयर कि हाँ. सो डोंट वरी, एक डेढ़ साल तक जस्ट ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दिस. नेक्स्ट आई वांटेड टू से what is this. By this I mean, यार, you should not have so many books. Try to limit your source. This is very important. मतलब what I will suggest is, you should have one standard textbook for every subject in GS. Other than the textbook, you can have a set of your own handmade notes. Own notes होने चाहिए. So if you have something, uh, मतलब, let's say, let's take example of polity. So polity you have the book called Lakshmikant, which is a wonderful book. It's like Bible of your polity. ठीक है, polity subject. So most of the things you will get it from there. But there can be times wherein, let's say, you have joined a coaching and you have notes, you have made a small, मतलब you have made class notes. You find कि हाँ, इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, और समवन टेल्स यू कि यार बॉस, इस वाली बुक में ये चैप्टर बहुत अच्छे से है, कि डीडी बासु में ये चैप्टर अच्छे से, एबीसी बुक में नीति आयोग का बहुत अच्छा चैप्टर है. तो व्हाट यू विल डू इज, rather than taking that entire book, what you will do is, you will basically uh, uh, try to make notes of that particular chapter and keep it in your notes. मतलब जो जो भी नई चीजें मिल रही हैं, आप सब अपने नोट्स में डालते जाइए. तो इवेंचुअली क्या होगा, यू विल हैव वन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एंड अ सेट ऑफ नोट्स विच विल बी सफाइस. ओके. सो डोंट हैव टू मेनी बुक्स. ऐसा नहीं कि आपके सोर्सेज इन्फिनाइट हैं, तो यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर सोर्सेज, बिलीव योर सोर्सेज, ट्रस्ट योर सोर्सेज. एवरी सोर्स हैज सम पॉजिटिव्स एंड सम नेगेटिव्स. ठीक है ना? Next, by this, what I mean is, as in, we tend to take so many advices. Many people I have seen कि वो इतने लोगों से advice ले लेंगे and then they will be confused कि अब क्या करना है. मतलब किसी ने बोला यार ये बुक पढ़ो, किसी ने बोला ये बुक पढ़ो, किसी ने बोला इसमें ये नहीं है, किसी ने बोला ये नहीं है, किसी ने बोला कि हिंदू पढ़ो, किसी ने बोला एक्सप्रेस पढ़ो. एवरी सोर्स इज गुड. आप हिंदू पढ़ेंगे, दैट इज ऑल्सो गुड. इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे, दैट इज ऑल्सो गुड. तो आप एक पकड़ के उसको ही पकड़ के चलिए, उसको ही अपना, उसको ट्रस्ट कीजिए, वो एवरीथिंग विल बी गुड. ठीक है ना? नेक्स्ट, ये मत करना यार. व्हेन यू आर स्टडिंग, यू हैव टू स्टडी सीरियसली, बट डोंट ओवर स्ट्रेच इट. जब आपको रेस्ट जरूरत है, इफ योर बॉडी फील्स लाइक टेकिंग रेस्ट, टेक प्रॉपर नैप. ये नहीं कि आप पढ़ते पढ़ते टेबल पे रात के 12-1 बजे सो गए और सुबह उठ रहे, देन यू आर नॉट इवन फ्रेश, यू हैव नॉट, योर बॉडी इज इन एकिंग. तो अवॉइड दीज थिंग्स. ओके. By this image, what I mean is, don't veer off yourself.
मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेन मत डालना कि स्ट्रेन डालोगे तो हो सकता है कि आप 1 महीने बहुत ज्यादा पढ़ लो, बट क्या आगे के टाइम पे वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होगा. दिस यूपीएससी जर्नी इज अबाउट sustaining yourself. It's about having that commitment for long, dedication for long, and not getting cowed down by negative emotions. Okay, so you have to sustain yourself for very long, so don't veer off very easily. So by this and this, what I mean to say is, in your preparation there will be a peak time, valley time. कभी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी और आप ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स पुट ऑन कर सकते हैं. तो अभी क्या, आप कॉन्स्टेंटली स्टार्ट करिए. मान लीजिए प्रीलिम्स में अभी 6 महीने, अभी अभी पहले 3 महीने आप अपना मेंस पे, आंसर राइटिंग पे, एस्से पे, एथिक्स पे, ऑप्शनल सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं. लास्ट के जब 3 महीने बचेंगे फिर हम प्रीलिम स्पेसिफिक तैयारी करेंगे. अभी हम 8-9 घंटे अगर स्पेशली पढ़ रहे हैं, तो जब प्रीलिम्स आने वाला होगा हम उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे. कोई भी एग्जाम के पास उसको उस समय हम पीक करेंगे. एग्जाम दिया, प्रीलिम्स हुआ, 4-5 दिन फ्री लेंगे, आराम से एंजॉय कीजिए, फिर से धीरे 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 स्टार्ट कीजिए. 10 घंटे, 9-10 घंटे, और उसको फिर बढ़ा सकते हैं. 9 to 10 hours इज मोर देन सफिशिएंट. ठीक है. नेक्स्ट इज डोंट डू दिस, नो प्लान इज माई प्लान. मतलब व्हाट आई मीन टू से इज, डोंट बी प्लानलेस. You should have a vision, you should have a plan in your mind. There are two things when it comes to planning. There are two things that you need to keep in mind. A plan can be um, a plan can be like मतलब एक तो आपका लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए. लेट्स से टुडे इट्स मिड दिसंबर and you are giving prelims in 2023. That's next, so first Sunday of June happens to be your prelims exam. Now you have somewhere around 5.5 महीना या 5 महीना is what you have. ठीक है. तो what you have to do is you have to have a rough idea to कि मेरे को ये चीजें अभी अभी ऐसे ऐसे कवर करनी है. तो उसके लिए फर्स्ट थिंग इज सिट डाउन, स्पेंड 1 or 2 hours, मेक अ प्लान कि हाँ भाई, नवंबर में आई विल स्टडी ऑप्शनल, दिसंबर में आई विल स्टडी ऑप्शनल, जनवरी में आई विल स्टडी एथिक्स, दिस दैट. So something like that, some plan you should have in your mind when you will give your test, something like that. So this is a long term plan, this is vision. Next thing is short term planning. When I say short term planning, it's basically about daily or weekly planning. Okay. In your main plan or long term plan, it's written कि I have to complete polity in 15 days. Okay. Now अगले 15 दिन का हमने प्लान बनाना है, ये शॉर्ट टर्म प्लान है. तो इसमें क्या है कि आपने बोला यार 7 दिन में मुझे लक्ष्मीकांत खत्म करनी है, 1-2 दिन में मुझे एआरसी की रिपोर्ट्स पढ़ लेनी है, या 1-2 दिन में मुझे ये टेस्ट दे देने हैं, 2 दिन में मेंस आंसर राइटिंग कर लूंगा, समथिंग लाइक दैट, वॉट एवर कम्स टू योर माइंड. या नोट्स अपने पढ़ने हैं. तो यू हैव दैट ब्रॉड कैटेगरी प्लान एंड देन यू हैव डिवाइडेड इनटू टू अचीव दैट बड़ा प्लान. ठीक है. तो यू शुड हैव प्रॉपर प्लान. वी विल मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू डू स्मार्ट प्लानिंग एज वेल. नेक्स्ट इज, दिस इज सेल्फ अंडरस्टैंडेबल. यू विल हैव लॉट ऑफ टाइम यार इसके मतलब, इफ डोंट फंसो इन दिस, अदरवाइज कहानी बिगड़ जाएगी. ठीक है ना, है ना. तो दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग सॉर्ट ऑफ थिंग, तो प्लीज अवॉइड इट. ठीक है. Next, this again, try to stay away from it. It will again be a big time waster. ठीक है ना. नेक्स्ट इज थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए. ऐसा मत कीजिए कि ओनली मेंटली यू विल बी सो ड्रेन्ड आउट कि इफ यू दैट सोनर और लेटर यू विल वियर ऑफ, आप थक जाएंगे मेंटली. तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आधा घंटा डेली टाइम निकाल के गो एंड डू सम एक्सरसाइज. मतलब पार्क में 2-3 राउंड दौड़ लीजिए, आधा घंटा योगा कर लीजिए, डू समथिंग. इट विल हेल्प यू अलॉट, बिलीव मी, इट विल हेल्प यू. एक ये प्रॉब्लम होती है, लाइक मेनी पीपल विल से कि अरे यार ये, मतलब कोई बोलेगा ये करा नहीं करा, अरे कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे. थिंग इज यू हैव लिमिटेड टाइम. इफ यू गो फॉर एवरीथिंग, राइट, आप कुछ मतलब ज्यादा चीजें, मतलब आपने इतनी सारी चीजें करने की कोशिश करी ना, तो आपका ना रिवीजन ही नहीं हो पाएगा कभी भी. ठीक है ना. तो कम कीजिए पर उसको रिवाइज कीजिए. रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. आई विल डू इट टुमारो. ट्राई नॉट टू पोस्टपोन थिंग्स. अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी है तो नाउ इज द आइडियल टाइम. दिसंबर, जनवरी, फेब, at least mid Feb तक you can work on your optional, you can work on your answer writing, you can work on your ethics, you can work on your essay writing. So these are the things we should target now. ठीक है. नेक्स्ट इज नो सोशल कट ऑफ और डोंट ओवर डू इट यार. मतलब ऐसा भी नहीं कि आप अपने माँ बाप का फोन नहीं उठा रहे हैं या बिल्कुल फ्रेंड से कोई मतलब ही नहीं है. यस, a degree of isolation is important, but इतना नहीं कि you, there is no one to emotionally support you in time of need. Okay, so avoid these things. Okay ना.
And one last thing is this, avoid this यार, चाय पे चर्चा, there's a lot of मतलब अनप्लान्ड ब्रेक्स मत लीजिए। चाय पे गए हैं, 15 मिनट का टाइम होना चाहिए था, यू आर स्पेंडिंग विद योर फ्रेंड्स, लाइक यू आर स्टैंडिंग देयर, और फिर 1 घंटा हो गया, यू आर टॉकिंग पॉलिटिक्स, यूक्रेन वॉर, व्हाट नॉट यू आर टॉकिंग, बट दैट्स नॉट वेरी यूजफुल। इट विल आपको पहले या तो थका देगा वो बात कर करके, आप थक जाएंगे, दूसरा है कि इट विल टेक योर टाइम, ठीक है ना। तो avoid these things. This is what I had to say. These are some no-nos that you should avoid while you are preparing for UPSC examination. I hope it's useful. And other than that, I'll make a video on how to do smart planning, reading newspaper. These are things in which I have in my mind, and of course, notes making and answer writing. The 3 4 videos I have in my mind. Anything else that you want to me to take a video upon, or any topic, particular topic of UPSC, do write in comment section. I'll try to allocate some time for that. Thank you.